obviously that will be in the this is the month of the October November we are talking, when the retreating monsoon arrives in the India. So during this time already we have the snow area. Fine, so rainfall is not possible. Himalayan region में तो वैसे भी snowfall इतना ज़्यादा होता है या बर्फ होती है, that rainy season we don't see. Secondly, then it is moving like this. You see here, this is the Nepal and Bhutan and this is the Bangladesh. फाइन, तो ये स्टेट्स के अंदर यहाँ पे बारिश होती है. कौन सी कंट्रीज में? नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, बांग्लादेश. फ्यू पार्ट ऑफ असम वी आर सीइंग हियर, or we can say some part here that is of the Bihar or the Odisha. Very few part we will see this coastal area. ये आंध्रा का कुछ coastal area हमें देखने को मिलता है. Fine, otherwise we will see here, see this way, the say this, the Tamil Nadu के अंदर, this is the Tamil Nadu, we know very well. So this wind is entering like this way, or we can say the rain is entering like this way, monsoon arrives like this way in the Tamil Nadu, and this is the month of December. क्लियर. सो रीट्रीटिंग मानसून इज द मानसून, इट मीन्स रीट्रीट मतलब दोबारा से इंडिया के अंदर मानसून का आना. एंड व्हेन द सेकेंड टाइम द मानसून एंटर्स इन द इंडिया, दैट इज फ्रॉम द साउथ नॉर्थ वेस्ट विंड, एंड व्हेन द फर्स्ट टाइम एंटर्स इन द इंडिया, दैट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट. ओके, दिस इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एंड रीट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. क्लियर, दिस वे द मानसून अराइज. और यहाँ पे देखो कहीं पे आपको रीट्रीटिंग में कहीं पे मानसून का वो आपको दिखाई नहीं देगा कि इंडिया में कहीं पे बारिश होगी, एक्सेप्ट इन दिस रीजन और इन दिस रीजन. क्लियर. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Come to the next one, distribution of rainfall. See how the distribution of rainfall is in. अब इन चीज़ों को तो आई होप बहुत जल्दी समझ लोगे आप. The western coast we know this is the western coast, ये पूरा का पूरा western coast and this is the eastern coast. Okay, so what do you mean by, what do we think here? The western coast and the northeastern India receives heavy rainfall, that is 400 centimeter. Yes, western and northeastern मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेस्टर्न घाट इज दिस वन, यहाँ पे रेनफॉल होता है हमारा. ये तो मैंने बहुत दूर लाइन बना दी है, बट इट इज़ क्लोजर लाइक दिस वे. ओके, सो दिस इज हेयर और इन द ईस्टर्न, सॉरी, और इन द ईस्टर्न पार्ट, here we get the rainfall. Nextly what is, and that is more than 400. Okay, nextly what is said, rainfall is very low in Rajasthan. ये हम सबको पता है that Rajasthan has a very low rainfall. Then Gujarat, Haryana, Punjab, interior of the Deccan part, Leh in Ladakh. These are the areas where the rainfall is being less because these are very far areas or far away from the coastal area. Next is rest of the country receives moderate rainfall. Yes, other part of the country receives the moderate rainfall. Another is snow is restricted to the Himalayan region. Yes, snowfall हमने अभी देखा था कि इंडिया के अंदर अगर हमने यहाँ पे देखो that this is the region where the snowfall is seen. So rainfall is not possible. Rain is not possible. So snowfall is restricted up to this much area only. Snowfall is not able to enter in this part of the area or in this part of the country. So I hope this point is clear. नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया था, यही है. हाँ, नेक्स्ट वन इज क्या है? द एरिया ऑफ हाई रेन फ्लड. ओब्वियसली जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे केरला के अंदर, दिस इज द पार्ट ऑफ केरला. एवरी ईयर वी यूज टू सी हियर द फ्लड कंडीशन. अंडरस्टूड. तो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड देखने को मिलता है. एंड इन द विंटर सीजन वी सी द साइक्लोन एंड ऑल दैट कंडीशन, फ्लड कंडीशन हेयर इन दी ओडिशा साइड, आंध्रा साइड. नेक्स्ट वन इज द लेस रेनफॉल ड्रॉट एरिया. ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर ड्रॉट एरिया, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे बारिश कम होती है. नाउ सी हियर, दीज आर द एरियाज, लो रेनफॉल एरियाज. ये है गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, लेह इन द कश्मीर. दीज आर द एरियाज वेयर वी हैव अ लो रेनफॉल. फाइन. नेक्स्ट वन इज, सो ऑलरेडी वी यूज टू डू दिस. अच्छा, सीजन्स. अब इंडिया में सीजन्स कैसे आते हैं? हमने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और ये तो देख लिया. सीजन, दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन एंड द हॉट वेदर सीजन. सो लेट अस सी दिस कोल्ड एंड हॉट वेदर सीजन हाउ इट इज. फर्स्ट वन, इट स्टार्ट फ्रॉम द मिड नवंबर. ऑब्वियसली देखो अब सर्दियाँ नहीं स्टार्ट हो जाएंगी, नवंबर इज गोइंग टू स्टार्ट. सो फ्रॉम द मिड नवंबर इन द नॉर्थ इंडिया एंड स्टे टिल द फेब्रुवरी मंथ. वी ऑल नो दिस पॉइंट वेरी वेल दैट yes, this point is correct, that cold is seen in the mid of the November till February. December, January is the coldest month. Yes, it is very coldest month. We all knows about this thing. The temperature decreases from south to the north latitude. Yes, see how it is happening. These are the latitudinal lines. अगर ये हमारा लैटिट्यूडनल लाइन से, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर हमारा होता है ये.
Fine. So what is said? See what point here it is written. The temperature decreases from south to the north. This is the southern part. अगर इंडिया का हम लेके चले तो from here we have the India. So southern part is this one. So what is it? The temperature decrease from the south to north. Obviously from the northern side we have the snowfall, we have cold region. So in the northern part we have the temperature कंपैरेटिव मोर लेस टेम्परेचर देन द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सनरेज सीधी गिरती हम देख चुके हैं, तो ये एरिया सबसे ज़्यादा हॉट माना जाता है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल्स ओवर द कंट्री एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. येस, ड्यूरिंग विंटर के अंदर देखो लैंड क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो कंट्री के अंदर फ्लो होनी स्टार्ट होती है, जो हमने अभी रीट्रीटिंग मानसून में देखा था. फ्रॉम द वेस्टर्न साइड विंड्स कम, और असम साइड से जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हमें देखने को मिलती है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल साइड एंड लैंड टू सी की तरफ जाती है. रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड्स, ये हम कर चुके हैं. एंड द रबी क्रॉप इज विंटर क्रॉप, दैट इज ड्यू टू द विंटर क्रॉप ड्यू टू द विंटर मानसून इन द विंटर. रबी क्रॉप्स आर लाइक द वीट, बार्ले, मस्टर्ड, दीज आर द रबी क्रॉप्स. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सी हियर, दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज द हम जो उस पॉइंट की बात कर रहे थे, दैट इज द सदर्न. सी दिस इज द इक्वेटर, ये हमारे एक इक्वेटर की लाइन है. इक्वेटर से इंडिया का देखो आप कहाँ पर है, इंडिया यहाँ लाई करता है. फाइन. सो एज वी गो अवे फ्रॉम द साउथ पॉइंट ये है वाला, यहाँ से जैसे दूर दूर जितने दूर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे हम, उतना ही जो है वो वेदर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर साइड वी नो है दैट टेम्परेचर इज वेरी लो ड्यू टू द स्नोफॉल. ओके. नेक्स्ट इज द हॉट वेदर. हॉट वेदर का मतलब क्या होता है, देखो हॉट वेदर सीजन वी नो वेरी वेल, दैट इज द समर सीजन एज एन हॉट सीजन. सो नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. नॉर्थवर्ड मूवमेंट, देखो अर्थ हमें पता है टिल्टेड होता है. सदर्न टाइम के विंटर टाइम में हमारा जो ये अर्थ होता है दैट इज़ मोर टिल्टेड, दैट इज़ मोर अवे फ्रॉम द सन. एंड इन द नॉर्दर्न इन द समर मंथ इट इज़ क्लोजर टू द सन. मतलब क्लोजर का मतलब होता है कि सन की तरफ हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड होता है. ड्यू टू दैट जो है ना इसमें सीजन्स में चेंजेस हमें देखने को मिलता है. एंड द northern part is being hot during the time of summer because we are earth globe is tilted toward the sun. Summer begins in the March until stay the month of May. Yes, it is right. मार्च से लेकर मई तक ये सीजन चलता है. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लो ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन. येस इट इज राइट. सी दिस इज द पेनिनसुलर. पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, दैट एरिया विच इज कवर्ड फ्रॉम द थ्री साइड विथ वाटर और ओशन. तो यहाँ पे भी ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है. so this is covered from the three sides, so this is the peninsular area. Okay, so in peninsular area we have the moderate temperature due to the ocean. फाइन. तो ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है. द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर. येस, क्यों होती है फॉलिंग एयर प्रेशर, क्यों होता है? इन द यस्टरडेज चैप्टर आई सेड यू दैट ड्यू टू दी yesterday I said you in last video that low rainfall, falling temperature का मतलब क्या होता है, एयर प्रेशर का, क्योंकि गर्म हवाएं ज़्यादा होती है समर के अंदर. एंड ड्यू टू द हॉट एयर्स वी नो दैट हॉट एयर बिकम्स द लाइटर इन द वेट. और जब लाइटर होती है तो ये एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हवाएं जो होती है वो हल्की हो जाती है गर्म होने के बाद ड्यू टू दी सन रेजेज. By the end of the May, a low pressure zone is created. Yes, mid of the May low pressure होना start हो जाता है due to the heavy sun rays which directly falls on the Tropic of Cancer. Okay, it begins low rain and cool breezes. हाँ, धीरे धीरे ये जो है फिर रेन और ये होना स्टार्ट हो जाता है. Towards the close of the summer season, pre-monsoon shower are common in Kerala and Karnataka. Yes, pre-monsoon shower का मतलब होता है मानसून स्टार्ट होने से पहले उसकी बारिशें मतलब होना स्टार्ट हो जाता है. So that is seen.
Next one, the last is after and after summer you will हैव मानसून सीजन ऑल्सो. ये समर के बाद हमें पता है समर होता है, फिर हमारे पास मानसून होता है, देन हमारे पास विंटर. दीज आर द मेन सीजन्स. ओके, सो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर. नेक्स्ट वन इज, अच्छा, रीट्रीटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की हम बात कर चुके हैं. यू जस्ट गो टू दी स्लाइड्स वीडियो एंड जस्ट सी दैट वीडियोज, जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुल एंड देन रीड ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, what is this monsoon as a unified bond? What do you mean by monsoon as a unified bond? Means so many variations we used to see in the India due to the different latitudes and longitudes, due to the different temperature on the earth surface, due to the different seasons. तो हमें वेरिएशन यूनिफाइड क्या है, मानसून एज ए यूनिफाइड बॉन्ड. यस, यूनिफाइड बॉन्ड है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती, अलग अलग चीज़ें. हमारी कंट्री के अंदर टेम्परेचर जो वरी करता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, also because of the, we know that the currents are running, okay, because of the variation in the seasons के अंदर, due to the weather conditions. So all these are the points because of the that the monsoon is seen in the country. So okay, all these were the chapters. So I hope read this point, go through this point from the book and read the chapter. If you get any doubt, just watch the video again and again so that the points can be clear. Still you have any doubt, just you can ask, but before that read at least chapter 2 times. Today our chapter is completed. Thank you, have a nice day.